اچھا ٹھیک اور یہ سمسی کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آئیے ہم خدا ان کے کلام میں سے ایک حوالہ پڑھیں۔ پہلا کرنتھیوں کا خط 12واں باب اور اس کی پہلی آیت، دو حوالہ جات پڑھیں گے۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 12واں باب اس کی پہلی آیت، صرف ایک آیت پڑھیں گے، اور پھر 14واں باب اس کی پہلی آیت۔ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کا 12واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ پھر دوسرا حوالہ اسی خط کی 14واں باب اور اس کی پہلی آیت، اسی خط کا 14واں باب اور اس کی پہلی آیت۔ محبت کے طالب ہو اور روحانی نعمتوں کی بھی آرزو رکھو، خصوصاً اس کی کہ نبوت کرو، کیونکہ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ آدمیوں سے باتیں نہیں کرتا بلکہ خدا سے، اس لیے کہ اس کی کوئی نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ اپنی روح کے وسیلے سے بھید کی باتیں کہتا ہے۔ لیکن جو نبوت کرتا ہے وہ آدمیوں سے ترقی اور نصیحت اور تسلی کی باتیں کہتا ہے۔ جو بیگانہ زبان میں باتیں کرتا ہے وہ اپنی ترقی کرتا ہے، اور جو نبوت کرتا ہے وہ کلیسیا کی ترقی کرتا ہے۔ اگرچہ میں یہ چاہتا ہوں کہ تم سب بیگانہ زبانوں میں باتیں کرو، لیکن زیادہ تر یہی چاہتا ہوں کہ نبوت کرو، اور بیگانہ زبانیں بولنے والا کلیسیا کی ترقی کے لیے ترجمہ نہ کرے تو نبوت کرنے والا اس سے بڑا ہے۔ بس اے بھائیو، اگر میں تمہارے پاس آ کر بیگانہ زبانیں میں باتیں کروں اور مکاشفہ یا علم یا نبوت یا تعلیم کی باتیں تم سے نہ کہوں تو تم کو مجھ سے کیا فائدہ ہوگا؟ آمین۔ خدا کی برکت اس کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر ہو۔ یہ دو حوالہ جات میں نے پڑھے ہیں۔ اس میں جو پہلا حوالہ ہم نے پڑھا روحانی نعمتوں کے تعلق سے آج بات کی جائے گی کہ خدا کا روح جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے اس کے تعلق سے، اور میں نے پہلے 12 باب میں جو آیت پڑھی تو اس میں لکھا ہے کہ اے بھائیو، میں نہیں چاہتا کہ تم روحانی نعمتوں کے بارے میں بے خبر رہو۔ اور دیکھیں کہ یہ خدا کے بندے مقدس پولس کی ڈیزائر ہے، کیا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ ہر ایک ایماندار روحانی نعمتوں کے بارے میں خبردار ہو۔ کیا کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ تم کیا ہو؟ بے خبر۔ میں نہیں چاہتا کہ تم کیا ہو؟ بولیے بے خبر۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک ایماندار کو اس کے بارے میں خبر ہونی چاہیے، ہر ایک کو خدا کے ساتھ جو چلتا ہے روحانی نعمتوں کے بارے میں کیا ہو؟ خبر ہو۔ اور دوسرا حوالہ جو میں نے پڑھا 14ویں باب میں سے تو لکھا ہے خدا کا بندہ کیا کہتا ہے کہ روحانی نعمتوں کی کیا رکھو؟ آرزو رکھو۔ کیا رکھو؟ بولیے آرزو۔ آرزو کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز کی ڈیزائر کرنا، خواہش کرنا، کہ وہ اس کے بارے میں پیاس رکھنا کہ یہ چیز میرے پاس ہو۔ تو آپ دیکھیں پہلی بات پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ہر ایک ایماندار وہ کیا رکھے؟ خبر، بے خبر نہ رہے، یعنی اس کو نالج ہو، علم ہو نعمتوں کا۔ اور دوسری بات کہ وہ آرزو رکھے کہ میرے پاس یہ نعمتیں ہو۔ ایمان لانا مسیح پر، توبہ، بپتسمہ، خدا کے ساتھ چلنا، اور اس سے آگے بھی ہے کچھ، بہت کچھ ہے، لیکن جو آج میں ڈسکس کروں گا تو وہ اسپرچول گفٹس، روحانی نعمتیں جو خدا کا روح ہمیں دیتا ہے، ان کے بارے میں
پول کہتا ہے کہ بے خبر نہیں رہنا، اور دوسری بات وہ کیا کہتا ہے؟ آرزو رکھنا ہے، ظاہر رکھنا ہے کہ یہ میرے پاس بھی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کتنا آپ خواہش کرتے ہیں، کتنا آپ ڈیزائر رکھتے ہیں، آرزو رکھتے ہیں روحانی نعمتوں کے بارے میں، یہ میرے پاس ہو۔ کتنا کوئی خواہش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ یہ آج میں نے اور آپ نے ہی دیکھنا ہے۔ کیا کتنا بائبل کی یہ تعلیم ہے۔ دیکھیں پول نے یہ 12واں باب 14واں باب روحانی نعمتوں کے بارے میں اس پر بھرپور تعلیم دی، اور ہر ایماندار یاد رکھے کہ اس کو ان کے بارے میں پتہ ہو، اور دوسری بات کہ وہ آرزو رکھے ان کے بارے میں۔ تو آگے وہ نعمتوں کا بھی میں ذکر کروں گا، لیکن میں اور آپ یہ ہمیں دیکھیں کہ کتنا ہم اس کو آرزو رکھتے ہیں روحانی نعمتوں کے بارے میں، کتنی طلب ہے، کتنی پیاس ہے۔ اور کرائسٹ نے کیا کہا؟ اگر کوئی پیاسا، بولیے اگر کوئی پیاسا ہو، یعنی یہ نعمت اسی کو ملے گی جو پیاسا ہوگا۔ تو لکھا آ کر میرے پاس پیے اور میں اسے زندگی کا پانی دوں گا۔ اور بائبل میں لکھا ہے کہ جیسا کتاب مقدس میں آیا کہ اس کے اندر سے آگے بولیے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی، یعنی یہ روح القدس کی نعمتیں جاری ہوگی۔ اور آگے اسی حوالے میں آگے لکھا ہے کہ یہ اس کے بعد روح القدس کے بارے میں کہی کہ روح اب تک نازل نہ ہوا تھا۔ تو یہ مسیح نے پاک روح کے تعلق سے یہ بات کی، اس کے بارے میں تعلیم دی کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیے، میں اسے زندگی کا پانی دوں گا۔ اور جیسا کتاب مقدس میں آیا ہے زندگی کے پانی کی ندیاں اس میں سے جاری ہوں۔ تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر روحانی نعمتیں ہیں تو زندگی ہمارے اندر سے جاری ہوتی ہے۔ آمین۔ روحانی نعمتیں ہیں تو پھر زندگی جاری ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جیسے انسان ہوا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، تھوڑی دیر کے لیے ہوا ختم ہو جائے تو آپ دیکھیں پھر کیسے انڈیا کے اندر جب آکسیجن ہسپتالوں میں بھی نہیں تھی مل رہی، لوگ بڑے مشکل میں مر رہے تھے، بہت حالات تھے کرونا وائرس ہوئی اور ممالک کے اندر، کیونکہ یہ ڈیزیز اندر پھیپھڑوں میں کام کرتی جس کی وجہ سے اسے آکسیجن ملتی نہیں۔ مطلب یہاں پر بھی اگر ایئر ہوا ختم ہو جائے تو ہم ایک منٹ کے لیے یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ اسی طرح سے خدا کے پاک روح کے بغیر، ہولی اسپرٹ کے بغیر روحانی طور پر کوئی زندہ نہیں رہ سکتا، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ لاسٹ سنڈے عید پینتیکوست کا سنڈے تھا، روح القدس کا، اس کو ہم کہتے ہیں روح القدس کی عید پینتیکوست۔ بائبل میں نئے اعلان میں ورڈ آیا ہے، پرانے میں نہیں ہے، یہ صرف نئے اعلان، اور یہ یہودیوں کی تھی۔ یہودیوں کی 3 بڑی عیدیں ہوتی تھی، عید فصح، عید پینتیکوست اور یہ یہودیوں کی عید ہوتی تھی۔ اور جو لاسٹ سنڈے عید پینتیکوست کا لفظ، پینتیکوست کا مطلب 50 ہوتا ہے، 50، یعنی یہ جو عید 50 دن آتی ہے، تو مانی عید فصح سے 50 دن وہ گن لیتے تھے، تو 50 دن یہ عید آتی تھی۔ آج ہم عید پینتیکوست بھی کہہ دیتے ہیں، یہ نام کیونکہ استعمال ہوئی اور مال دوسرے باب میں اور پھر مال کی کتاب ہی میں یہ استعمال ہوئی ہے، تو پیچھے یہ نہیں ہے، کیونکہ یہ لفظ یونانی لفظ ہے پینتیکوست، اور اس کا مطلب 50 ہوتا ہے، 50۔ تو یہ یہاں پر ہی
جو ہے وہ نئے احکام میں ہی یہ صرف لفظ آیا ہے، پرانے میں یہ نہیں۔ تو یہ یہودیوں کی عید ہوتی تھی۔ آج میں اور آپ اس کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، آج ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں وہ روح القدس کی عید ہوتی ہے، آمین، یا روح القدس کے نزول ہونے کی عید۔ بچوں سے برائے مہربانی، بچوں سے ادھر دیکھیں، آپ کے بیٹا ادھر دیکھو ذرا، سامنے سیدھے ہو کے بیٹھو، آپ سیدھے ہو کے بیٹھو، ادھر میری طرف دیکھو، خدا کے کلام کو کھولیے، اس کو سناتے ہیں۔ تو اس کو ہم ہولی اسپرٹ کی عید کہتے ہیں، پاک روح کے نازل ہونے کی، یا ایک اور لفظ کہیں گے تو کلیسیا کی ابتدا کی عید ہے، آمین۔ اس دن خدا کا پاک روح 120 کی جماعت پر نازل ہوا، اور یہودی اس دن کرتے کیا تھے؟ یہ پورے جمع کرنے کی بھی عید کہتے تھے اس کو، فصل کی کٹائی کی عید بھی کہتے تھے، ہفتوں کی عید بھی اسے کہتے تھے، فیسٹ آف ویک، ہفتوں کی عید بھی اسے جو ہے وہ کہتے تھے۔ تو اس دن فصل کو کاٹنا شروع کرتے، اور پہلا پورا جو کاٹ کے فصل کا تو اس کو وہ ایسے حوال کے اندر لہراتے خدا کے سامنے، اور بعد میں 49 دن وہ گن لیتے، اور جب 50واں دن آتا تو پھر ساری فصل وہ کاٹ کر، اور اس دن 49 دنوں کے بعد وہ فصل کاٹی جاتی، ساری فصل کاٹی ہے۔ تو پھر پاک آدموں کے ہر خاندان اپنی جو فصل کاٹی ہے 2 گھنٹے بنا کر لے کر آئے، ہر گھرانے کو یہ لے کے آنا ہے، اور لکھا ہے تم اس کی فصل بعد میں کھانا، پہلے میرے لیے لے کے آنا، جو کہا گیا اس کو پہلے فالو کرنا۔ کیا میں نے کہا کیا ہوتا کہ تم جو ساری فصل کاٹی گی اپنے لیے روٹی بعد میں کھانا، پہلے کیا کرنا؟ وہ 2 گردے لے کے آنا۔ تو اس کا مطلب کہ وہ اگر 2 روٹیاں لے کر آئے ہیں تو اس کا مطلب باقی فصل جو ان کے پاس ہے اس پر خدا کی کیا ہے؟ برکت ہے۔ تو لکھا تو وہ کھیت مقبول ہوگا، تو مطلب کہ اگر اس میں سے وہ 2 روٹیاں لے کے آئے ہیں جو خدا نے کہا ہے تو باقی فصل بھی اس کی کیا ہے؟ بولیے مقبول، ادروائز وہ مقبول نہیں۔ اس لیے آپ کے بائبل رولز کو، قانون کو، خدا کی شریعت کی باتوں کو یہ دیکھیے، لیکن تم بعد میں کھانا، پہلے اسے میرے لیے لے کے آنا، خدا کے لیے۔ اس سے یاد رکھیں کہ خدا کے حصے اپنی آمدنی کے خدا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے لے کے آنا ہے میرے لیے، اور لیکن بعد میں جو کھیت ہوگا اس پر وہ کیا ہوگا؟ برکت ہوگا، وہ فصل برکت ہوگی، مقبول ہوگی خدا کے سامنے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ آپ جو خدا کا حصہ ہے وہ پہلے اس کے سامنے لے کے آئے، اس کے حضور میں پیش کرنے کے لیے، یہ برکت تم نے مجھے دی ہے تو میں اس کو تیری حضوری میں لے کر۔ تو یہ یہودیوں کا فیسٹیول ان کی یہی ہوتی تھی، اور اس لیے لکھا جب پینتیکوست کا دن آیا، یہی وہی جو ہفتوں کی منا رہے تھے، 7 ہفتے فصل کی کٹائی ہو چکی تھی، اور اب 50واں دن آیا، یہ پینتیکوست کا دن، یعنی 50واں دن آیا جو فصل کی کٹائی کا دن ہوتا تھا، اور پھر وہ 120 کی جماعت وہاں پر موجود تھی، اور خدا کے لیے دعا میں وہ ٹھہرے ہوئے تھے، ہولی اسپرٹ کے لیے، خدا کے روح کے لیے، کیونکہ یسوع مسیح جب اٹھایا گیا زیتون کے پہاڑ سے تو ان کو کہا کہ یروشلم میں ٹھہرے رہنا ہے، جب تک قوت کا لباس نہ ملے اس وقت تک ٹھہرے رہنا۔ اور جب میں اس پہ غور کر رہا تھا تو آپ یہ دیکھیں وہ گلیل کے پہاڑ سے مسیح
खुदावन उठाए गए गलील के पहाड़ से। और ये सारे शिगिर्द गलीली थे, गलील के सूबे से थे, इनका ताल्लुक गलील के सूबे से। लेकिन ठहरने के लिए कहा गया? बोलिए कहाँ ठहरे रहना? यरूशलेम में, गलील में नहीं। कहा गया? यरूशलेम में। रहते वो किधर थे? गलील में। और यरूशलेम में तो उनकी दुश्मनी थी। फक्की फरीसी सरदार कायन उन्हें मार डालना चाहते थे और डरे सहमे हुए थे। तो फिर मानिए हमारे सामने क्या होता है? हालांकि उनके घर गलील के अंदर थे, गलील के अंदर। और वो गलील जब यीशु मसीह उठाया गया गलील के पहाड़ से, तो अपने घर आराम से जा सकते थे, गलील में वो रहते थे। लेकिन मसीह ने कहा कि ठहरना किधर है? यरूशलेम के अंदर, उस जगह पर। हालांकि वहां उनकी दुश्मनी है, हालांकि वहां पर उनके कब्र का खदशा है, उनकी मौत का, डेथ का, जेलों में, कैद में डाले जाने का खतरा है, तो भी वो ठहरे हुए हैं। आप ये देखिए कितनी ताबेदारी है कि वो वहां पर ठहरे हुए हैं। और कितने दिन के लिए ठहरे? बोलिए 10 दिन। कितने दिन साहब? बोलिए 10 दिन। साहब बोलिए भाई भी 10 दिन मुसलसल ठहरे हुए हैं दुआ में। क्योंकि क्राइस्ट ने कहा है कि भाई ठहरे रहे 10 दिन तक दुआ में, जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले। और मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, और लिखा मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, यानी तुम्हें फायदा मिलेगा। मैं जाता हूं, बाप से दरख्वास्त करूंगा और तुम्हें वो दूसरा मददगार बख्शेगा, भेजेगा। तो पहला मददगार यीशु मसीह खुद, और दूसरा मददगार होली स्पिरिट, खुदा का रूह। क्योंकि रूह अब तक नाज़िल नहीं था हुआ। तो मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं और बाप से दरख्वास्त करूंगा, मिन्नत करूंगा, शिफायत करूंगा, और फिर दूसरा मददगार तुम्हारे लिए, आगे बोलिए, क्या करेगा? भेजेगा। इसके लिए तुम्हें यरूशलेम के अंदर ठहरे रहना है। तो आप देखिए 10 दिन मुसलसल वो ठहरे रहे, 10 दिन दुआ में, प्रेयर में। क्योंकि उन्हें पता है कि पाक रूह के बगैर हम कुछ भी नहीं। उन्हें पता है हमें पाक रूह की जरूरत है। उन्हें पता है कि वो दाऊद पर नाज़िल होता था, वो शमशूर पर जोर से नाज़िल होता था, नबियों के ऊपर, और हमें भी उसकी जरूरत है। तो ठहरे रहे वहां पर 10 दिन के लिए। और फिर उन्होंने बाइबल में लिखा मसीह खुदा जब उठाया गया 40 दिन वहां पर आसमान की बादशाही के बारे में उनको सिखाता रहा। और जब आसमान की बादशाही की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि क्या तू इस्राएल को बादशाही अभी देगा? यानी उनके माइंड के अंदर ये आ गया कि शायद बादशाही शुरू हो गई खुदा की। तो क्राइस्ट ने क्या कहा वहां पर कि उन वक्तों और म्यादों का जानना तुम्हारा काम नहीं है, ये मेरे बाप का काम है कि कब बादशाही शुरू होगी। लेकिन उससे पहले क्या करना है, ये फिर वहां पर मसीह ने कहा और लिखा है कि तुम जब तक तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिले तुम ठहरे रहना, और जब तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा तो लिखा है फिर यरूशलेम और फिर यहूदिया, सामरिया, और आगे लिखा जमीन की इंतहा तक। आगे बोलिए क्या होंगे मेरे गवाह? कहां तक? जमीन की इंतहा तक। अब मैटर समझिए, वो क्या कह रहे हैं कि बादशाही आए, वो क्या कह रहे हैं? बोलिए बादशाही कब देगा, बादशाही कब आएगी? तो क्राइस्ट ने क्या कहा? कुछ जब तक नहीं मिलता ठहरे रहो, और कुव्वत का लिबास मिलेगा तो तुम यहूदिया, सामरिया, गलील और लिखा जमीन की इंतहा तक मेरे क्या होंगे? दुआ। इसका मतलब क्या है कि जब तक बादशाही नहीं आती तुमने मेरी गवाही देनी है। ये मतलब है वहां पर क्या देना है? तुमने मेरी गवाही।
तो अब देखिए कुव्वत कहा, जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले तो कुव्वत किसके लिए दी गई? बोलिए, गवाही के लिए, गवाही के लिए। गवाह लिखा तुम मेरे गवाह होंगे, तो इसलिए कुव्वत उनको दी गई। इसलिए उन्होंने कहा मसीह ने के ठहरे रहना, और वो 10 दिन ठहरे रहे दुआ में। ये मेरे और आपके लिए बहुत लम्हा फिक्रिया होगा अगर हम दुआ में नहीं ठहरते। कुछ वक्त खुदा के कदमों के अंदर, खुदा की हुजूरी के अंदर ये ठहरना जरूरी। तो कितना ठहरते हैं ये मुझे और आपको पता है। तो आप देखिए वो 10 दिन वहां पर ठहरे रहे, तो हम भी जरूर ठहरे, घर में ठहरे, कलीसिया में कहा जाता है उसमें ठहरे, इधर अनाउंस किया जाता है कि आपने ठहरना है दुआ में, इधर आए। तो रूह कुछ की बख्शिश या इनाम उसी सूरत में मिलता है जब कोई डिजायर। इसीलिए पौल कहता है ऐ भाइयों बेखबर ना रहो, और दूसरी बात आरज़ू रखो। तो ऐसे नहीं मिल जाता, आरज़ू रखनी पड़ती है। डिजायर तो रखेगा वही जिसे पाक रूह के बारे में समझ होगी, जिसे पता होगा पाक रूह की कुव्वत का, कुदरत का, कि वो कैसे वर्क करता है मुकद्दसों के अंदर, वो किस तरह से काम बिलीवर्स के लिए। और याद देखिए कि मसीह ने ये कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा, यानी तुम्हें फायदा होगा। मैं जाऊंगा, बाप से दरख्वास्त करूंगा, तो दूसरा मददगार भेजेगा। इसका मतलब कि वो हर ईमानदार को फायदा देना चाहता है, हर एक ईमानदार के लिए, हर किसी के लिए, ताकि उसकी लाइफ को फायदा मिले। क्राइस्ट अगर ना जाता तो फिर दूसरा मददगार ना आता, इसलिए वो गया। और अभी 10 दिन वो बैठे रहे, तो लिखा दुआ जब वो कर रहे थे तो मकान जोर की आंधी से हिलने लग पड़ा, और लिखा है कि उन्होंने रूह कुद्स को वहां पर उसकी हुजूरी और आंख शोला जो है वो देखा, और गैर जुबाने लिखा पड़ती हुई जुबानें उन्हें नजर आई और आकर उन सब पर ठहर गई, और लिखा वो गैर जुबाने बोलने लगे। आगे लिखा जैसा रूह ने उन्हें जो बोलने की कुव्वत दी, और वो नबूवतें, प्रोफेसीज और टंग्स गैर जुबानों के अंदर बोलने लग पड़े वहां पर। और बाज़ यहूदियों ने कहा ये नशे में है, गट्टा मारा उन्होंने कि ये नशे में है। हालांकि वहां पर 16-17 ममालिक के लोग आए हुए थे, और खुदा का यहूदी, याद रखें कि हर यहूदी को हर ईद पर पहुंचना पड़ता था, हर ईद पर। और इन्हें पैदी कोर्स पर भी सारी दुनिया के यहूदी वहां पर पहुंचे हुए थे। खुदा का यहूदी सब मुल्कों से, जितने जितने दुनिया भर के अंदर थे, वो सब मुल्कों से पहुंचे हुए थे वहां पर। खुदा का यहूदी। बेटा बाहर ले जाओ थोड़ी देर के लिए, ताकि वो बाहर ले प्लीज। तो सारी दुनिया में से यहूदी, और वहां पर 16-17 मुल्कों के लोग वहां पर जमा हुए थे, और लिखा है वो अपनी अपनी जुबान में खुदा का कलाम, बड़े बड़े कामों का बयान वो सुन रहे थे अपनी अपनी जुबान के अंदर। और हालांकि वो और मुल्कों की जुबानें बोलते थे, लेकिन जब सुन रहे थे कहते क्या ये सब गलीली नहीं है, तो भी फिर हमें क्यों अपनी अपनी जुबान में समझ आ रही है तो ये सारे गलीली। तो इसका मतलब कि खुदा का रूह जिसका क्राइस्ट ने वादा किया वो उन पर नाजिल हुआ, और वहां पर वो गैर ज़ुबानें बोलने लगे। और ये वहां पर ये पाक रूह के नाजिल होने का जो ज़हूर वहां पर, याद रखे पाक रूह पहले भी काम करता था, पुराने नामे के अंदर पाक रूह वहां पर भी काम करता था, लेकिन वहां पर कभी कभी नाजिल होता था। वहां पर बोलिए
कभी कभी नाजिल होता था। जरूरत के वक्त मसलन शमशूर ने फिलिस्तियों के साथ 1000 फिलिस्ती सामने है, उसे गधे की चमड़े की हड्डी मिल गई और बाइबल में लिखा है कि खुदा का रूह जोर से उस पर नाजिल हुआ और उसने गधे के एक जबड़े की हड्डी से हजारों फिलिस्तियों को मारा। इसका मतलब कि वहां पर पुराने नामे में पाक रूह उस जरूरत के वक्त नाजिल होता था। कभी कभी नाजिल जब उन्हें नींद होती तो नाजिल होता, लेकिन नए नामे के अंदर मसीह खुदा ऊपर गया तो होली स्पिरिट को भेज दिया और कहा अब वो तुम्हारे साथ होगा और फिर अंदर भी होगा। अब वो अंदर कलीसिया के एक ईमानदार के अंदर रहता है। इसीलिए बाइबल में लिखा क्या तुम नहीं जानते कि तुम रूह कुछ का क्या बोलिए मक़दस मस्कन, इसका मतलब अब होली स्पिरिट खुदा का रूह पाक रूह कुछ अब उनको सब अंदर रहता है। वो लिखा तुम्हारे साथ होगा और फिर तुम्हारे अंदर भी होगा। उन पर तो नाज़िल होता था जरूरत के वक्त, लेकिन अब कलीसिया के लोग लिखा अंदर भी है साथ भी है। और फिर तीसरी बात जो नाज़िल होने की होती है, नाज़िल साथ है अंदर है और नाज़िल भी होता है। अब इस बात को आपने समझना है, इस बात को आपने समझना है। बाज़ लोगों को सवाल करते, पिछले दिनों फिर मुझे किसी ईद पैदी कोर्स पर सवाल किया कि खुदा का रूह जब नाज़िल हो गया आ गया है, यीशु मसीह ने उसको भेज दिया, तो फिर हम गीतों में क्यों कहते कि आ रूहे पाक आ उतर आ रूहे पाक उतर आ? ये सवाल है अक्सर, ये सवाल किया जाता है कि फिर हम क्यों कहते हैं कह रूहे पाक उतर आ? वो कहते हो तो यीशु मसीह आसमान पर गया तो उसने पाक रूह को क्या किया दिया, भेज दिया, तो वो तो साथ के अंदर है, तो फिर हम क्यों उसे कहते हैं आ रूहे पाक उतर आ? है ना सवाल बॉयज, जो है ना सवाल लोग पूछते हैं कि क्यों आप उसे कहते हैं। तो इस बात को आप सबने इसको जो है वो फॉलो करना है। एक जब बच्चा पैदा होता है, एक बच्चा पैदा होता है तो उसको नेम दे दिए जाते, गिफ्ट दिए जाते हैं। कोई ना कोई घर में जाते हैं, चाचा आ गया, चाची आ गई, ताया आ गया, उसको कुछ ना कुछ नाम उसको देकर कई दफा कुछ पैसे दे देते हैं, कोई चीज के कपड़े, तो उसके लिए नया सूट लेके कुछ ना कुछ उसको नाम दिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह जब मैं और आप यीशु मसीह को अपना मुनज्जी निजात दीदा ईमान उसमें लेके आते हैं, नए सिरे से हम पैदा हो जाते हैं और रूह हमें मिल जाता है। नए सिरे से हम पैदा होते ईमान के जरिए से, तुमको फसल ही से ईमान से निजात मिली है, ईमान है नए सिरे से पैदा, और पाक रूह हमारे अंदर है, मिल जाता है, उसी टाइम मिल जाता है पाक उसी टाइम। इसलिए सुनिए, जब उन्होंने ये कहा कि ये तो नशे में है, पौल ने कहा पतरस ने कहा भाई अभी तो पहर दिन चला है, यानी 9 बजे है, तुम कहते हो नशे में हो। और जब उन्होंने सारी बात कही है तो योएल नबी की मार्फत पहले से खुदा ने कहा कि आखिर ज़माने में मैं हर फर्दे बशर पर अपने रूह में से नाज़िल करूंगा, और लिखा तुम्हारे बेटे बेटियां नबूवत करेंगे, तुम्हारे बुढ़े खाब और तुम्हारे जवान रोया देखेंगे। तो पतरस कहते हैं ये वो बात है जो योएल नबी ने कही थी बरसों पहले, उसने कहा था आज वो पूरा हुआ तुम्हारे दिन। यीशु मसीह गया वहां पर और उसने रूह कुछ को भेज दिया, कहता वो बात पूरी हुई है। तुम कहते हो हम नशे में है, भाई हम नशे में नहीं है, बल्कि ये तो वो बात पूरी हुई है। और फिर पतरस ने कहा है फरीसियों फकीरों शराकियानो, तुमने यीशु मसीह को कत्ल किया, मसलूब किया। और लिखा जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों के ऊपर चोट लगी और कहने लगे ऐसा को फिर हम क्या करें कि निजात पे। उसने कहा ईमान हो खुदा
मसीह के नाम पर और बपतिस्मा लो, गुनाहों से तौबा करो। आगे क्या बोले, क्या कहा तुमको? रूल कुछ बोलिए, इनाम मिले, गिफ्ट इनाम मिलेगा रूल कुछ में। बस क्या करो, तौबा करो और ईमान लेके आओ। गुनाहों से तौबा और ईमान, यही बात उन्होंने कही। दूसरी तीसरी बात है कि दो बातें सिर्फ कही, तौबा करो और क्या लेके आओ? इधर देखो, इधर तौबा करो और ईमान, दो बातें, तीसरी बात नहीं। और ना कोई आज अगर कोई आपको इसके बारे में तालीम देता है तो तीसरी बात कोई ना सुने। ये कहते हैं लाओ आओ जी जरा, आज मैं जरा कान में फूंकता हूँ, यही कान में गिरोल कुछ इस तरह मिलेगा, कान में जोर जोर से दुआ। भाई उन्होंने दो ही बातें कही, पता से गौर से सुना है आपने ये सरमन। सिर्फ पहली बात क्या, गुनाह से तौबा, और दूसरी बात ईमान, ये दो बातें, और तीसरी बात उन्होंने कही नहीं। और आज भी सुनिए कि खादम यही दो बातें कही, तौबा करो, ईमान लेके आओ। ईमान होगे तो तुम बिल्कुल सना में पाओ। कोई तीसरी बात है ही नहीं। इन्हीं दो बातों से आज भी तो तौबा करे, ईमान लेकर, तो बिल्कुल उसके अंदर है। आप फिर नाज़िल क्यों हम कहते हैं कि उतरा, इसका मतलब अंदर तो वो है। जब कहते कि तो इसका मतलब क्या है, हमारे जिस्म पर, बॉडी पर, हमारे जो सारे जिस्म के ऊपर तू कंट्रोल कर, ये मतलब है इसका, कि तू मुझे लीड कर। ये अंदर तो वो है, साथ भी है। इसका मतलब जब कहते कि उधर तो मतलब कि तू मुझे लीड कर, होली स्पिरिट तू जो मेरा मददगार है, मेरे साथ अंदर है, मुझे लीड कर, मेरी रहनुमाई कर, ताकि मैं तेरी मर्जी में चलूं। ये मतलब, इससे कोई ना समझे कि हम कहते हैं कि वो भी वो आ चुका है। जब कहते हैं कि तो मतलब हम पे नाज़िल हो, हमारे सारे सोचों को, ख्यालों को, दिल को अपने इख्तियार में ले, अपने कंट्रोल में कर। अब देखिए अंदर वो है, गुनाह करते रहे तो होगा नाज़िल, गुनाह बदी करते रहे तो नाज़िल होगा। सोचे ख्यालें और तरफ लगी होगा नाज़िल, कंट्रोल करेगा नहीं। वो भाई अंदर है, ईमानदार भी, सोचे, बिलीवर भी, खुदा के साथ चलने वाला भी, भाई गुनाह करता है तो वो अंदर नाज़िल नहीं होगा, कुव्वत और नहीं बख्शेगा। इसीलिए लोग क्यों कमजोर रह जाते हैं, समझ नहीं है। गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, तो खुदा का रूह कैसे, इसे बोलने कहा रूह को रंजीदा ना करो। वो है अंदर, साथ है, वादा है। अगर रंजीदा करते हैं, गुनाह करते हैं, बदी, गुनाह, गालियां, शराब नोशी, नशे, तो ये जिस्म के काम, लेकिन जिस्म के काम तो जाहिर है ना, रामकारी, चोरी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, झूठ, ये सारे जिस्म के काम है। तो रूह को नहीं मिलेगा, है ये काम, तो कैसे वो नाज़िल होगा? इसे साथ है, अंदर है। और तीसरा वो नाज़िल, तो नाज़िल का मतलब क्या है? रूह कुसा, मैं अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ, तू मेरे जिस्म, मेरी सोच, मेरी अकल, मेरे दिल को अपने कब्जे में, कंट्रोल में कर। हालेलुया, ये नाज़िल होने का, इसलिए बोलने का रूह में बार बाप के अंदर है। भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे तमाश करता हूँ, अपने बदन आगे बोलिए, ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा, पूरी बॉडी की वो बात करता है, तब जाके रूह को साता है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो। देखिए बॉडी को नजर करना भाई कौन करेगा? इधर तो कहते ना भाई सादा सादा काम हो,
जाइए इतवार को इबादत करिए, कार चंदा आने की बात सुन, भाई बॉडी को नजर करने की तालीम है बाइबल में। हाँ, पूरी बॉडी, अपनी सोच, अगर दिल, यादें, ख्याल, तब जाके होली स्पिरिट मिलता है। अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा पाक और खुदा को आगे बढ़े। यही तुम्हारी मकबूल इबादत, सच्ची इबादत ये है, ये है सच्ची इबादत। अब एक गीत गा के कलाम सुन लिया, ये जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, लेकिन अगर बदन नजर नहीं है, खुदा के लिए नहीं है, इसलिए दाऊद को पढ़े वो कहता है, खुदा मेरे रूह, मेरे मुंह पर निगहबान बैठा, यानी होली स्पिरिट को दावत दे, निगहबान बैठा मेरे मुंह पर, और कहता है मेरे अंदर जो वो संगीन दिल डाल, वो निकाल मेरे अंदर से, वो दिल डाल मेरे बातन में, असर नो मुस्तकीम रूह डाल, संगीन रूह दिल को निकाल, असर नो नए सिरे से मेरे बातन में वो डाल। इसलिए नाज़िल होने का ये मतलब है कि खुदा तू मुझ पर पाक रूह को नाज़िल कर, होली स्पिरिट आ मेरे दिल पर, मेरे मुंह पर, मेरी सोचों पर, मुझे अपने मुकम्मल तौर पर कब्जे में कर। आमीन। और दैन पाकर वो मिलता है, और वहां पर शागिर्दों को मिला 12 शागिर्द और 120 की जमात, मुकद्दसा मरियम भी वहां पर। याद रखें, मुकद्दसा मरियम सिर्फ ये लास्ट उसका सीन है, लास्ट आखिरी दफा वो यहाँ पर इस जमात में 120 की जमात में यहाँ पर मौजूद थी, उसके बाद उसका कुछ बाइबल नहीं बताता। हाँ, और कैथलिक में जो बड़ी रिस्पेक्ट और वो करते, बेशक वो सारा कुछ है, इज्जत ऑनर सब कुछ रिस्पेक्ट सब औरतों से ज्यादा मुबारक हमें करनी, लेकिन आप देखिए बाइबल में यहीं पर उसका है और उसके बाद नहीं है। ये सुमसी खुदा का बेटा आसमानों पर उठाया गया, खुदा के दाने हाथ बैठा है और रूह कुद्स भेजा है, ऊपर हेवन पर वो शिफायत करता है, नीचे पाक रूह शिफायत करता है। आमीन। इसलिए बाइबल की ज़बान की वो बड़ा ही हशमत, कुदरत, तमजीद, बुजुर्गी के लायक है, क्योंकि उसने जमा होकर कौमों तो कबीलों में से खुदा के लोगों को खरीद लिया, वो ऑनर के, जलाल के, बुजुर्गी के लायक है। तो ये जी, ये होली स्पिरिट का मतलब है, यानी फिर इसका मतलब कि वो साथ है, अंदर है और नाज़िल भी होता है। अब एक और मिसाल में देता हूं, समझिए इस बात को। बाइबल में लिखा, जब यीशु मुर्दों में से जी उठा, ब्यास की झील के ऊपर लिखा, शागिर्द उन पर वो जमा थे, तो यीशु ने कहा, रूह कुद्स लो, रूह कुद्स क्या लो, और वो फिर वहां का जिनके गुनाह तुम बख्शोगे उनके बख्शे जाएंगे, जिनके कायम रखो कायम रखे जाएंगे। तो पता है रूह कुद्स उसने कहा लो, देखो तो भी नाज़िल होने के लिए वो ठहरे 10 दिन तक वही शागिर्द ठहरे। तो कहते हैं क्यों नाज़िल हो गए, वो मिल तो गया है भाई, वो ठहरे हैं प्रेम में, आसमान पर उठाए जाने के बाद भी वहां पर ठहरे हुए हैं। रूह कुद्स में मिले, और जब मिला तो लिखा, पतरस 19,000 का फरीसी जिनके डर से वो बांटता, कमरे में सारे शागिर्द डरे सहमे हुए थे, अंदर कमरे में बंद डरे हुए थे वहां पर, और बाहर कोई आता जाता, वहां पर डर, खौफ, दहशत थी। अब जब रूह कुद्स मिल गया, कमरा ऐसे हिलने लगा, जोर की आंधी, सुनाटा, टंग्स, जुबानें वहां पर नाज़िल, रूह कुद्स से वो भाग गए। अब वही पतरस जो डरा था, जो मसीह का इनकार करने वाला था, वहां पर कहता है, फकीरों, फरीसियों, सरदार बहनों, तुमने उसे कत्ल किया। वो कहते हैं इसमें इतनी दिलेरी किधर से आ गई, कहते हैं इसमें इतनी, बोलिए क्या आ गई दिलेरी, उसी पतरस के अंदर जो बड़ा डरा सहमा मसीह का इनकार करता, मैं इसको नहीं जानता। अब जब रूह कुद्स अंदर है, सब मतलब जोर को, और वही तो मसीह ने कहा, जब तक तू तलवार
गया तो जाके उन्हें कहता है फकीर फरीसियो, वो कहते हैं इसमें इतनी क्लेमी किधर से आ गई? समझ होली स्पिरिट पाक रूह उसके अंदर है, जोर उसकी जिंदगी के अंदर है। इसलिए आज जिनके पास खुदा का रूह है और लिखा वो तुम्हें कैद खाने में कोड़े मारेंगे हवालात के अंदर और तुम डरना ना, उसी घड़ी तुमको कहा जाएगा। और उसी घड़ी खादम भी पकड़े जाते हैं, जुबैरुल कुसुम पर आता है और वो फौरन जवाब देते हैं। लोग कहते हैं ये कहां से इतनी दलेरी इनके अंदर है? आमीन। ये तो अनपढ़, ये तो पढ़े लिखे नहीं है, मछलियां बेचने वाले पकड़ने वाले, इतनी दलेरी किधर है इनके अंदर से? वो उनको पता नहीं, लेकिन मुझे और आपको पता है ये खुदा का पाक रूह है जो उन पर नाज़िल हुआ। अब नहीं उनके अंदर है जुर्रत, कुव्वत उनके अंदर है, वो जाते हैं मुनादी करते हैं। एक और खुदा का खादिम मुबश्शिर स्टीफनस के बारे में बाइबल में लिखा है, उन्होंने ऑर्डेन किया और वो फजल और रूह से मामूर बना हुआ शख्स, और उसने भी जाकर उन यहूदियों को, फकीर फरीसियों को कलाम सुनाया, मुनादी की। और बाइबल में लिखा है कि वो भी हैरान थे कि भाई ये मुबश्शिर स्टीफनस, उसके अंदर इतनी दलेरी किधर से आ गई है? ये पाक रूह का जोर उसे दिया गया, पाक रूह की कुव्वत उसके अंदर, और वो गवाही देते रहे। यही तो मसीह ने कहा कि गवाही देना, पाक रूह जब नाज़िल होगा कुव्वत का लिबास मिलेगा, आगे लिखा तो तुम कुव्वत पाओगे। और यहूदिया सामरिया यरूशलेम आगे लिखा ज़मीन की तहा तक, यही रसूलों ने किया। वो फिर निकले जब होली स्पिरिट मिल गया और रोम तक गए, पूरी दुनिया में यहाँ तक बड़े सगीर पाको हिंद में भी तो खुदा का बंदा यीशु मसीह का रसूल आया, और आज हम यीशु मसीह को जानते हैं। हालेलुया। ये कुव्वत तुम्हें मिली तो मुंह हुए निकले। इसे पाक रूह जो दिया जाता है वो कुव्वत के लिए दिया जाता है। लोग बस यहाँ तक ही समझ रहे थे, वे जरा सा हिल गए, जरा सा टच। और ये भी ये सुनिए, पाक रूह ईमानदारों के लिए नेमत है, और पीछे वैसा उसे किया जाता था तेल से जिस पर ब्लड लगा होता था। पहले खून का फाड़े को वो जानते, फिर उसे पाक मसा किया जाता तेल से। बिल्कुल इसी तरह आज भी जो मसीह के कफारे पर ईमान रखते हैं, ब्लड की अहमियत को समझते हैं, जानते हैं कि मेरे लिए कफारा दिया गया, खून बहाया गया, मेरे लिए किसी ने जान दी है, पाक रूह उन्हें मिलता है। आमीन। दुनियादारों को नहीं, पाक रूह है सबके लिए। यही लिखा है आखिरी जमाने में हर फर्द बशर, पहले हर पर नहीं था, पहले नबी पर, कायम पर, बादशाह पर, अब लिखा खुदा ने कहा मैं सब पर नाज़िल करूंगा, सारी हर फर्द बशर पर। और लिखा है तुम्हारे गुलाम और लौंडियां उन पर भी। गुलाम और लौंडियां यानी मतलब खुदा के बेटे बेटियां। अब जैसे पौल कहता है मैं खुदा का बंदा हूँ, मुकद्दसा मरियम कहती मैं खुदा की बंदी हूँ, तो ये कि वो कबूल करे कि मैं उसका बंदा हूँ, बंदी हूँ, और उनको उसको मिलेगा इनाम के अंदर। और फिर सिर्फ गैर जुबानों तक नहीं है, याद रखे एक बात, अहम बात, रूहुल कुद्स गैर जुबान नहीं है। क्या मैंने कहा? रूहुल कुद्स गैर जुबान, सब बोलिए रूहुल कुद्स गैर जुबान, रूहुल कुद्स गैर जुबान। ये एक नेमत है, नेमत बहुत सी है, ये भी एक नेमत है। इसलिए लिखा वही एक रूह सब में हर तरह का असर करता है, और लिखा जिसको जो जी जाता है वो बांटता है। मुख्तलिफ शिफा की नेमत, ईमान की नेमत, हिकमत का कलाम, इल्मियत का कलाम, रूहों के इम्तियाज की नेमत, गैर जुबानों की भी एक नेमत है। और फिर लिखा तर्जुमे की भी नेमत। और पौलुस ने कहा अगर तर्जुमा करने वाला नहीं है कलीसिया में, कहते वो गैर जुबानें बोलने वाला चुप रहे। इसलिए हमारे कलीसिया में हम नहीं यहाँ पर बोलते, तर्जुमा करने वाला हो तो बोले। और पौल ने कहा अगर मैं गैर जुबान में 10,000 बातें कहूँ तो तुम्हें समझ ना आए तो क्या फायदा। इसलिए वो कहता है मैं 10
गैर जुबान में 10,000 कहते जो क्या फायदा है? गैर जुबान से कलीसिया की तरक्की नहीं है, ये किसी की शख्सी तरक्की है। भाई गैर जुबान बोलते जाओ, पर्सनल प्रेयर में घर जितना मर्जी बोलते जाओ, और गैर जुबान का मकसद ही यही है कि अच्छी तरह दुआ करना। आप ऐसे प्रेयर में आधा घंटा दुआ करते हैं, गैर जुबान में किसी को है नेमत तो वो बोले वो घंटों बोल सकता है। हाँ, लेकिन पौल ने कहा ये बाइबल में कहता है कि मैं चाहता हूँ कि सब जुबानें बोलो, लेकिन कहता है ज्यादातर यही चाहता हूँ कि नबूवत करो, कि वो ये कहता है। और कहता है मैं तुम सबसे ज्यादा जुबानें बोलता हूँ, और लिखा जुबानें बोलने से मना ना करो, यानी कि बोलता भी है तो भी बोले दो, लेकिन अपनी पर्सनल प्रेयर में, शख्सी दुआ में, गाने में बोले। कलीसिया में बोलना है तो तर्जुमे के साथ बोले, ताकि समझ हो लोगों को गैर जुबान से शख्सी तरक्की है, अपनी तरक्की किसी की, कलीसिया की तरक्की उससे नहीं है, नबूवत से कलीसिया की तरक्की है। इसे कहता है ऐ भाइयों मैं चाहता हूं कि तुम सब जुबानों में बातें करो, लेकिन कहता है ज्यादातर प्रायोरिटी आ गई कि ज्यादातर ये चाहता हूं कि तुम सब क्या करो, नबूवत, क्योंकि नबूवत से कलीसिया की तरक्की होती है। आमीन। कलीसिया दुआ करती है नबूवत से, गैर जुबान से शख्सी तरक्की होती है। फिर वो कहता है कि भी बोलना है तो फिर तर्जुमे वाला साथ खड़ा होना चाहिए। ये बाइबल का पैटर्न है। और मैंने देखा है कलीसिया में पिछले दिनों हमारे अजीज आके बैत हुई, वो किसी और कलीसिया के मेंबर थे और उन्होंने आकर दुआ शुरू ही गैर जुबान से शुरू, गैर जुबान से एंड। यहाँ किसी को कोई पता नहीं क्या कहा है क्या नहीं, शुरू किधर से खत्म किधर। सुनो, कोई लिहाज कलीसिया में रखा ही नहीं जाता। ये हम गैर जुबानों में बात, भाई पौलुस को तो पढ़ो क्या कहता है, ये भी तो पढ़ो क्या बाइबल की तालीम है। वो कहता अगर मैं गैर जुबान में बातें करूं और कोई बेगाना नावाकिफ गैर ईमान अंदर आ जाए तो क्या तुमको वो अहमद दीवाना ना कहेगा? क्या इसको हो गया है? इसलिए एक सिस्टम के तहत बाइबल की तालीम जो दी जाती है, बोल ली है साथ तर्जुमे वाला बाइबल इसको कहती है। पर तो भी पौलुस ने एक बात कही, 2-3 मिनट और लूंगा, खत्म करूंगा। कहता है ऐ भाइयों मैं चाहता हूं तुम सब नबूवत जो है वो रूहों के बारे में बेखबर ना रहो और आरज़ू रखो। कहता है तो भी इससे बढ़कर मैं एक बात कहता हूं। क्या कहता है? कहता है कि मोहब्बत रखो, क्योंकि लिखा जुबानें मौकूफ हो जाएंगी। भाई ये जुबानें जो है गैर जुबानें जो बोलते हैं, हाँ मौकूफ हो जाएगी, बाइबल कहती मौकूफ हो जाएगी। जुबानें क्या होंगी? भैया जुबान की बात में गैर जुबानें बोलेंगे, हाँ नहीं, खत्म हो जाएगी, मौकूफ यहाँ पर ही है। भाई वहां पर तो जरूरत नहीं है, वहां पर तो नहीं। इसलिए लिखा अगर मैं मोहब्बत ना रखूं तो ठंडनाता पीतल झंझनाती छाछ हूं। कहते हैं मोहब्बत सब बातों को सह लेती, बर्दाश्त करती, नज़ेबा काम नहीं करती। और कहते हैं इसलिए मोहब्बत सबसे अव्वल है, अफजल है, यानी नेमतें तो है उससे भी बढ़कर मोहब्बत। कहते सबसे जरूरी जो बात है वो मोहब्बत को बोले क्या ऊपर सरफरिश्त जुबानों से भी बढ़कर। और ये लोग आज कलीसियाओं में सिर्फ कहते हैं होली स्पिरिट की यही नेमत मिल जाए यार जुबान में। भाई बाकी नेमतें 27 नेमतें 27 वो भी तो ले लो। वहां पर लिखा है मुसाफिर परवरी की, किसकी? मुसाफिर परवरी की, किसकी बोलिए? ये भी नेमत है। तुम्हारे रहने की ये भी नेमत। देखें तो मसीह के लिए कमाल रहते, ये भी उसके लिए नेमत। हाँ मेरा ये मतलब नहीं कि कोई शादी ना करे, नहीं। पौल कहते हैं 1 से 2 बेहतर, लेकिन अगर किसी को नेमत मिल जाए तो वो खुदा के लिए भी जिंदगी गुजार सकता है। हाँ? ये नेमत मुसाफिर परवरी की। हमारे घरों में कोई आ जाए फिर वक्ता पड़ जाते हैं, यार क्या है इसको रोटी पानी। भाई ये नेमत, ये
गिफ्ट मुसाफिर परवरी का, ये भी रूह कुछ की नेमत है। तालीम देने की, नासे की, नसीहत करने की नेमत, इतनी नेमत उस्ताद की गैर जुबानी तर्जुमा, ये तो एक बात, इससे बढ़कर ईमान की नेमत, शिफा की नेमत, तर्जुमे की नेमत, गैर जुबानों की नेमत, मोजज़ात की नेमत, बहुत सी नेमतें हैं, सिर्फ एक नेमत। इसलिए मैंने कहा कि वो कहते हैं, इसलिए मैंने कहा कि गैर जुबान रूहुल कुद्स नहीं है, वो रूहुल कुद्स की एक नेमत है। और मैंने कईयों को कहते सुना से एक बार, जी गैर जुबान उतर भी क्या कर देगा, ये एकदम पाखरू मिल जाए, भाई पहले बाप को तो ले, बेटे को तो ले, वो जो कहते उस पर अमल कर, ये तो गिफ्ट है, जब तू उनको फॉलो करेगा ये तुझे इनाम में मिल जाएगा। हाँ, ये तो गिफ्ट है, पहले बाप को जान, बेटे को जान, उसी मान, ये तुझे इनाम में मिल जाएगा। हाँ, इसलिए ये गिफ्ट इनाम मुकद्दस और ईमानदारों खुदा के बेटे बेटियों के लिए है। और उसने कहा रूहानी नेमतों के बारे में आरज़ू रखो, इनकी भी कोई आरज़ू रखे। इसलिए ये मैसेज, ये पैगाम कि कुव्वत का लिबास ले, गवाही दे, जब तक उसकी बातचीत नहीं आती मैं दुआ करूं उसका, ये रूहुल कुद्स का पैगाम है। रूहुल कुद्स की बख्शिश का मतलब कि मैं गवाह बन जाऊं, अपने आस पड़ोस में गवाह बनूं, अपनी सोसाइटी में गवाह बनूं, मोहल्ले में गवाह बनूं, कलीसिया में गवाह बनूं, कोई उंगली ना उठा सके ये खुदा का बेटा बेटी। और पहले अपने घराने को, इसलिए लिखा पहले यरूशलेम, भैया अपना घराना, फिर सामरिया, उससे आगे आपके पड़ोस में, फिर ज़मीन की इंतहा तक, आखिर तक मेरे गवाह होंगे। हालेलुया। हर एक ईमानदार का मकसद गवाही दे, लेके आए किसी न किसी को खुदा के घर में। अक्सर लोग पादरियों पर शिकायत करते हैं, ये आंदे नहीं, वही कलीसिया का क्या काम, लोगों को लेके आओ, गवाही दो। हाँ, तो लिखा है खुदा का बदन तरक्की करेगा। आमीन। उसका मक़दस, खुदा का घर तो जाके तरक्की करेगा जब हर एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा करेगा, गवाही के लिए पाखरू को लेगा अपने बातन के अंदर, और फिर गवाही देगा, रूह जीतेगा, और खुदा का बदन जो है वो तरक्की करेगा। आमीन। इसलिए कुव्वत का लिबास ले, किसके लिए? गवाही के लिए, कि मैं उसका गवाह बन जाऊं, मैं उसके लिए रूह जी सकूं, मैं उसके लिए निकल सकूं। उसी ने कहा जब तक कुव्वत का लिबास ना मिले ठहरे रहो, दुआ करते रहो, उससे मांगे। आप कितना मांगते हैं, कितना डिजायर करते हैं? मैं तो अपनी पर्सनल प्रेयर में कहता हूँ, शख्सी दुआ में, खुदा मुझे रूहुल कुद्स की नेमतों से भर, और नेमतों से बढ़कर फलों से मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, सब्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, नेकी, हिरम, परहेज़गारी, ये फल है। सिर्फ गैर जुबानों पे आकर अटके ये मिले, भाई फलों से हर एक ईमानदार लैस हो, लबरेज हो, उसकी जिंदगी से नजर आए मोहब्बत, इसके अंदर है खुशी, इत्मीनान, सब्र, इसके अंदर लाइफ में पाया जाता है, तो नजर आएगा कि इसके पास कुव्वत का लिबास है, इसके पास पाखरू की नेमत है, इसके पास पाखरू है, खुदा का रूह उसमें बसा है, और जब ये मांगता है तो उस पर नाज़िल होता है। इल्म का कलाम, हिकमत का कलाम नजर आता है। खुदा का शुक्र है, मैं कलाम जब सुनाता हूँ हिकमत मुझे मिलती जाती है, पाखरू मुझ में रिवील करता जाता है, काशवार करते जाते हैं। ऐसे नई बात खुदा का रूह मुझे सिखाता रहता है, इसलिए कि खुदा का रूह मुझे कुव्वत दे रहा होता है। आमीन। पाखरू से वो मुझे मामूर करता रहता है, बढ़ता है, इसलिए कि मैं उससे कहता हूँ कि खुदा मुझे पाखरू से भर, मामूर कर, मुझे रूहुल कुद्स के फलों से भर। इसलिए आप सब जो खुदा के रूह को जानते नहीं, जानिए उसे, ये उसके वो नाम है, गिफ्ट है। और उसी ने कहा मैं चाहता हूँ, जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। वो दूसरा मददगार हमें फायदा देता है, हमारे साथ रहता है, मददगार है, लेकिन मैं दूसरा मददगार अब तक और टर्नल आसमान की बातचीत तक हमारी मदद करेगा। आइए अपने कदमों पर खड़े, खुदा का शुक्र, उसके पाखरू के लिए जो हमारे